আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत ने मानवता को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रेड क्रॉस डे कार्यक्रम में कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस बार जवाबी कार्यवाही की तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान काफी समय से प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। भारत ने मानवता को बचाने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को रेड क्रॉस दिवस मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, अगर पाकिस्तान ने इस बार जवाबी कार्रवाई की तो देश का सफाया हो जाएगा। এখন যুদ্ধ লেগে গেছে, আপনারা প্রায় বলা যায় প্রক্সি ওয়ার তো পাকিস্তানের ওরা করতোই, কিন্তু এবার মুখ্য জবাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে ভারত ওনাদেরকে দিয়েছে এবং আগামী দিন যদি দেখা যায় যে ওনারা আবার কিছু করছেন তাহলে আমার মনে হয় এই দেশ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে, সেটা আমি বলতে পারি। এবং মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাঝে মাঝে আমাদের ভূমিকা সেইরকম ভাবে আমাদের করা উচিত এবং সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেটা করছেন। রাজ্যেও আমরা সেইভাবে আমরা কাজ করছি। কেউ যদি মনে করে যে আমরা খুব নরম মানুষ, যা খুশি তাই করবে, যা খুশি মানুষকে নিয়ে খেলাধুলা করবে, সেটা আমরা কোনো অবস্থায় হতে দেব না এবং আমরা সেইভাবেই তার আঘাত আনব এবং আমাদের মানুষকে নিয়ে চলতে হয়। মানুষের সমস্ত তাদের সমস্যা একদিনে সমাধান হয়ে যাবে সেটা কিন্তু বলার সম্ভব নয়, কোনোদিন সম্ভব নয়। দেখতে হবে আমাদের অল্প সময়। তারপরও আজকে আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বলুন, এগ্রিকালচারের বিষয়ে বলুন, পর্যটনের বিষয়ে বলুন, আমাদের খেলাধুলার বিষয় করুন, সব বিষয়ে আমাদের সমস্ত যারা জনপ্রতিনিধিরা তারাও কিন্তু আলটিমেটলি এখানেও কিন্তু মানবতার পরিচয়, যে মানুষের যে জন্য কাজ করা সেটাও কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है, रेड क्रॉस आगे आता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, इस मामले में राज्य सरकार की मदद से प्रशिक्षण के माध्यम से टीम बनानी जानी चाहिए। আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে রেড ক্রস সোসাইটির এবং তারা যে অন্যান্য ক্রিসেন্টের যে ব্যবস্থা ওনারা করেছেন, যারা এর সাথে যুক্ত তারা যেভাবে নিজের জীবনকে বাজি রেখে এই আর্থদের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায়, ভূমিকম্প হোক সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে, ফ্লাড হলে সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে, যেখানে ডিজাস্টারের বিষয় দাঁড়ায় সেখানেই ওনারা পৌঁছে যাচ্ছেন। এখানে আমাদের যিনি চেয়ারম্যান আছেন উনি বলার চেষ্টা করেছেন যে এখনো আমাদের এখানে আরো এই ধরনের যারা ট্রেনার ওনাদের কম আছে, তো ট্রেন করে একটা সেই অর্থে এরকম একটা টিম বানানো উচিত যেটা আমাদের ডিজাস্টারের বিষয়ে কাজ আসবে এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই আমরা ওনাদেরকে আমরা সাহায্য করব। কারণ যে থিম এখানে রাখা হয়েছে কিপিং হিউম্যানিটি লাইফ, এটা বাঁচাতে গেলে আমাদের সবাই নিঃস্বার্থভাবে। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे दुनिया भर में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट की सिद्धांतों की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन उन संगठनों को सम्मानित करता है जो दुनिया भर में नेचुरल डिजास्टर्स, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स और किसी भी अन्य संकट से लोगों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से आगे आती है। यह दिवस हर वर्ष 8 मई को मनाई जाती है। यह दिन फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज विनर हेनरी डुनैंट की जयंती पर मनाई जाती है। रेड क्रॉस 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित है: फ्रीडम, ह्यूमैनिटी, इम्पार्शियलिटी, वॉलंटरी सर्विस, यूनिटी और यूनिवर्सलिटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन 11 मई को राज्य के दौरे में आएंगे। इसरो चेयरमैन वी के नारायणन सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के 5th कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे। त्रिपुरा फिशरीज कॉलेज के ऑफिशियल्स और एजुकेशन मिनिस्टर ने गुरुवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन से पहले आयोजित की गई थी। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन में सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आने वाली सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स उपस्थित रहेंगे। यह कॉन्वोकेशन 2 दिनों तक चलेगा। First time that a convocation is being held in the Constituent College, and that is our College of Fisheries, on 11 May 2025. On this occasion, more than 3,000 students will be awarded with their degrees
and in person are more than 1,300 to be precise, around 1,360 students will have confirmed to come in person to receive the degrees of different programs, a breakup of which we'll be sharing with you. The function in itself will be graced by none other. एकेडमिक ईयर शुरू हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कई स्कूलों के स्टूडेंट्स को किताबें नहीं मिली है। स्वाभाविक रूप से छात्रों को इस संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2025-26 शैक्षणिक वर्ष अप्रैल से शुरू हो गया है। अप्रैल के बाद दूसरा महीना मई भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के कई स्कूलों में छात्रों को अभी भी पाठ्य पुस्तक नहीं मिले हैं। यद्यपि कुछ स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है, लेकिन पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जाती है। केवल कुछ ही पुस्तकें दी गई है। यह छात्रों और अभिभावकों की शिकायत है। शिक्षा विभाग SCERT के माध्यम से कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद भी विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाती है। हालांकि 1 अप्रैल को नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राज्य के कई स्कूलों में अभी तक पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची है। इससे अंततः छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ पुस्तकें अभी भी पूरी तरीके से प्रिंट नहीं हुआ है, यानी वह किसी भी स्कूल को नहीं दी गई है, और जो थोड़े बहुत पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है वह भी सभी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों तक। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि नया शैक्षणिक वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से ही संपूर्ण पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं होती है तो कक्षाएं बाधित होती है। इसके अलावा पिछले वर्ष में जहां पाठ्यपुस्तकें समय पर स्कूलों तक नहीं पहुंची और इसकी शिकायतें आई, वही वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से पहले उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इस मामले में बार बार लापरवाही किसकी है, उसकी पहचान क्यों नहीं की जा रही है। अभिभावक भी उन परिणामों के बारे में सवाल उठा रहे हैं जो हर साल मासूम स्कूली छात्रों को भुगतना पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रचार के बावजूद अभिभावकों ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया है कि सरकार यह सुनिश्चित करने में कितनी गंभीर है कि छात्रों को सचमुच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यदि शिक्षा विभाग चाहती तो शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में ही सभी स्कूलों में संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुस्तकें पहुंचाई जा सकती है। यह असंभव नहीं है क्योंकि शैक्षणिक वर्ष अप्रैल में शुरू होता है, इसीलिए यह कोई अचानक या कोई नई घोषणा नहीं है। लेकिन अभिभावकों का मानना है कि शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों की बार बार लापरवाही के कारण छात्रों को पाठ्य पुस्तक देरी से मिल रही है। इस वर्ष शैक्षणिक वर्ष शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं और यह कोई नहीं कह सकता कि पूरी किताब आने वाले समय में कब मिलेगा। स्वाभाविक रूप से इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच काफी विवाद पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य सरकार ने त्रिपुरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंट्रोल वाले सभी कॉलेजेस की समर वेकेशंस कैंसिल कर दी है। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने गुरुवार को एक अधिसूचना में कहा कि छात्रों के हित में त्रिपुरा के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के कंट्रोल वाली सभी जनरल डिग्री कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के 9 मई से 13 जून 2025 तक की शेड्यूल्ड समर वेकेशंस वापस ले ली गई है। विभाग ने कहा है कि कॉलेजेस सेमेस्टर एग्जाम प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस और क्लासेस कंडक्ट कराने के लिए खुले रहेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने अधिसूचना में यह भी कहा कि कॉलेज में कार्यरत फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ्स को इन 26 दिनों के लिए अर्न्ड लीव मिलेगा, क्योंकि समर वेकेशन के दौरान भी यूनिवर्सिटीज खुले रहेंगे तथा क्लासेस कंडक्ट कराए जाएंगे। त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी ने विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। यह बैठक बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राजदीप रॉय के नेतृत्व में हुई। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के स्टेट इंचार्ज डॉक्टर राजदीप रॉय और अन्य उपस्थित थे। आज आयोजित संगठनात्मक बैठक से पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन रखा गया। वक्फ विधेयक और वन नेशन वन इलेक्शन सहित 2-3 केंद्रीय कार्यक्रम राज्य में भी आयोजित किए जा रहे हैं। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने कहा कि प्रभारी का राज्य दौरा इन गतिविधियों को और गति देने के लिए है। আমাদের রাজ্যের মাননীয় প্রভারী ডক্টর রাজদীপ রায় উনি ত্রিপুরা
এসছেন গতকাল। ওনার এই সফরকে কেন্দ্র করে উনি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন, কারণ ইতিমধ্যে আমাদের 2-3টি কার্যক্রম চলছে ন্যাশনাল লেভেল। আমাদের ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর এবং সংবিধানকে নিয়ে, আমাদের ওয়াকফ বিল নিয়ে 2-3টি কার্যক্রম আমাদের একই সঙ্গে চলছে। তো মাননীয় প্রভারীজি এই কার্যক্রমগুলিকে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনি ত্রিপুরা রাজ্যে এসছেন এবং আজকে আমাদের সদর কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠক ওনার নির্দেশ অনুসারে বা ওনার উপস্থিতিতেই এই সাংগঠনিক সভা হবে। प्रदेश बीजेपी इंचार्ज डॉक्टर राजदीप रॉय संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बुधवार को राज्य पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में उनकी मौजूदगी में होने वाली यह संगठनात्मक बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आज की बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए उठाए जा सकने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और कदमों पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच देश के विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक बार फिर इस मुद्दे में सरकार के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर केवल 25 मिनट तक चला था और इस 25 मिनट के ऑपरेशन में कई आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। 100 से अधिक उग्रवादियों का सफाया कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में इसकी घोषणा की। देश के रक्षा मंत्री ने यह संदेश भी दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष ने आज सर्वदलीय बैठक में कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने बुधवार आधी रात को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 स्थानों पर हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 से 1:30 बजे तक चला। 25 मिनट के ऑपरेशन में कई आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। हालांकि सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इस मामले में पाकिस्तान के किसी भी आम नागरिक पर हमला नहीं किया गया। भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में कहा, जिस तरह आतंकी शिविर नष्ट किए गए हैं उसी तरह 100 से अधिक उग्रवादियों का सफाया कर दिया गया है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार से बिना उकसावे के गोलीबारी की। इसमें भारत के 15 आम नागरिकों की जान चली गई। रक्षा मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा, पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की है। भारतीय सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सरकार ने विपक्षी राजनीतिक दलों से कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। हालांकि अगर पाकिस्तानी सेना हमला करती है तो जवाबी कार्यवाही की जाएगी। आज की सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। बैठक में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। विपक्षी राजनीतिक दलों ने बैठक में कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र जो भी निर्णय लेगा वह उसके समर्थन में होंगे। अब सवाल पूछने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सवाल पूछने का समय आएगा
तब वे सवाल पूछेंगे। इसी बीच द रेजिस्टेंट फ्रंट, एक उग्रवादी संगठन ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिम्मेदारी लिया है। वह पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के लिए एक सीयूडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहे। आज सर्वदलीय बैठक में विपक्षी राजनीतिक दलों ने मांग की है कि संगठन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कोलाशहर म्युनिसिपल काउंसिल के वार्ड नंबर 2, 4 और 5 पिछले 1.5 साल से गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। समस्या का समाधान न होने पर 60 वर्ष से अधिक आयु के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को DWS ऑफिस में एक प्रतिनिधिमंडल सौंपा है। बुजुर्गों ने शिकायत करते हुए कहा कि हमें सुबह और दोपहर में पानी नहीं मिलता है और ना ही जब हम ऑफिस जाते हैं तो अधिकांश समय हमसे ऑफिसर्स नहीं मिलते हैं। আর 1.5 বছর যাবৎ ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন মানুষ। জল পাচ্ছে না, না সকালে না বিকালে, কোনো বেলায় জল পাচ্ছে না। একটা লোক তো মারাই গেল জলের অভাবে, জল নেই। এই সংকটকালীন চলাকালীনেই আমাদের এলাকার সবাই মিলে আমরা আজ खुआई कमलपुर नेशनल हाईवे के रखरखाव की स्थिति की निगरानी करने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम अगले 15 दिनों के भीतर राज्य आ रही है। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने और NHIDCL ऑफिसर्स ने गुरुवार को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। NH 208 के कमलपुर खुआई सेक्शन के बीच 25.6 किलोमीटर की परियोजना का निर्माण 17 अप्रैल 2023 को पूरा हुआ। इस DLP में एक्चुअल कंप्लीशन डेट से प्रारंभ होकर 5 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड शामिल है। अगस्त 2024 में त्रिपुरा राज्य में भारी बारिश के बाद विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से खुआई बाईपास के 96 किलोमीटर और 97 किलोमीटर के बीच फुटपाथ के धंसने के संकेत दिखने लगे। इसके बाद 89+0 किलोमीटर और 94+0 किलोमीटर के बीच तथा 95+0 किलोमीटर से 101+300 किलोमीटर के बीच अतिरिक्त फुटपाथ की क्षति का पहचान किया गया। इस मामले में कुल क्षति परियोजना की लंबाई के लगभग 12 किलोमीटर की है। EPC कॉन्ट्रैक्टर ने NH 208 का निर्माण मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन के स्ट्रिक्ट कंप्लायंस में किया है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेक्रेटरी किरेन गित्ते ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। वाटर लेवल जो আছে আমাদের জলের যে স্তর জমির নিচে এটা অনেক উপরে, তো প্রায় 1.5-2 মিটারের নিচেই এই যে 12 কিলোমিটার মধ্যে জল আছে। আর রাস্তা হওয়ার পরে যে নিচে যে মাটির মধ্যে জল দেওয়ার পরে এটা सब लेयर রাস্তার নিচে যে লেয়ার আছে সেই লেয়ার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে মানে এখানে এমন নাই কি ট্রাফিক বেশি, ট্রাফিকের কারণে রাস্তা খারাপ হয়ে যাবে কিছু না। এটা সাবগ্রেড ওয়াটার লেভেল বেশি হওয়ার কারণে এটা ফোল্ডিং হচ্ছে, ক্লে জমা যাচ্ছে নিচে। এখানে অনেক গর্ত, বড় বড় গর্ত করা আছে। আমি দেখেছি নিউজ চ্যানেলে গর্ত নিয়ে কিন্তু এটা নিউজ করেছে। গর্ত কিন্তু এটা নিচে কিভাবে রাস্তা খারাপ হচ্ছে সেটা দেখার জন্য এটা গর্ত করা হয়। ইন্সপেকশন পিট বলা যায় এটা। আমরা চারটা পাট্টা আমরা পিট করেছি, এখানে প্রোটেকশন দেওয়া আছে। তো
কিন্তু নিউজ এরকম ইউজ হয়েছে যেখানে বড় ব্যর্থ হয়নি তা আমরা নিচে। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सेक्रेटरी किरण गित्ते ने कहा, लागू मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे निर्माण चरण के दौरान व्यापक क्वालिटी कंट्रोल प्रोटोकॉल बनाए गए थे। परियोजना का डिजाइन इंडियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के स्पेसिफिकेशन के अनुसार तैयार किया गया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की सचिव किरण गित्ते ने दावा किया है इस मामले में सामग्री की गुणवत्ता का प्रशिक्षण नियमित रूप से इंजीनियर की देखरेख में साइट पर स्थित प्रयोगशाला में किया जाता था तथा NABL से मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी लेबोरेटरीज द्वारा भी इसके मूल्यांकन की गई थी। सभी निर्माण सामग्री के लिए विस्तृत दस्तावेज समीक्षा के आधार पर इंजीनियर से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। इसके अलावा निर्माण सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि परियोजना का निर्माण के दौरान और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट स्पेशल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा निरीक्षण किया गया है और सभी रिपोर्ट्स ने संतोषजनक प्रगति और गुणवत्ता की पुष्टि की है। सचिव किरण गित्ते ने बताया कि इस मूल्यांकन के बाद 17 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, जिसके बाद 5 वर्षों का DLP शुरू हो गया। EPC कॉन्ट्रैक्टर के आकलन के अनुसार फुटपाथ की विफलता मुख्य रूप से हाई ग्राउंड वाटर लेवल के कारण थी, जिसके परिणाम स्वरूप सबग्रेड सॉइल सैचुरेशन हो गई, जिससे इसकी शेयर स्ट्रेंथ और लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो गई। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अन्य वक्ता NHIDCL के कार्यकारी निदेशक ने दावा किया। विशिष्ट कारणों का पता लगाने और सग्रीम सड़क प्रदर्शन का आकलन करने के लिए NHIDCL ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इस मामले में NHIDCL हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से अप्रूवल मांगी गई है। NHIDCL ने कहा है कि CRRI टीम द्वारा अगले 15 दिनों के भीतर स्थल का जांच शुरू कर दिया जाएगा। CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी हम यहाँ डिप्लॉय करेंगे और उनकी अप्रूवल की प्रक्रिया चल रही है। लगभग अगले 15 दिनों में वो आकर के यहाँ पे अपना काम शुरू कर देंगे और जिस प्रकार से वो हमारे को सलाह देंगे उसी प्रकार से ये काम किया जाएगा। इस पे डिपार्टमेंट को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसकी बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राष्ट्रीय सड़क और राजमार्गों के रखरखाव और नवीनीकरण का कार्य वर्तमान में चल रहा है और इसको पूरा होने में 2 महीने का अतिरिक्त समय लगेगा। उभरते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को NHIDCL के साथ बैठक की। इसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और NHIDCL ऑफिशियल्स ने संयुक्त रूप से समग्र मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गोकुलपुर क्षेत्र की स्थानीय महिलाओं ने उप जिला पुलिस ऑफिसर्स को एक प्रतिनिधिमंडल प्रस्तुत करके उदयपुर आरकेपुर पुलिस स्टेशन इंचार्ज OC बाबुल दास पर एक बड़ी रकम लेने के बाद ड्रग्स डीलर्स के साथ एक संगठनात्मक बनाने की गंभीर आरोप लगाया है। क्षेत्र की महिलाओं ने राधा किशोरपुर पुलिस स्टेशन में ड्रग डीलर्स के खिलाफ कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान न मिलने पर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स के पास लोकल ड्रग माफिया राजू मियां और OC बाबुल दास के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकल ड्रग माफिया राजू मियां को पुलिस ने मोटा रकम लेने के बाद रिहा कर दिया, हालांकि उन्हें पहले गिरफ्तार करके पुलिस को सौंपा गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि ऐसी घटनाएं पिछले 6 से 7 सालों से चल रही है। থানার ভিতরে টিয়া খাইয়া খাইয়া সাইরা দেয়। থানার OC বাবুল দাস টিয়া খাইয়া সাইরা দেয়, মাসে 50,000 টাকা করে খায়, হ্যাঁ সাইরা দিয়ে নিয়ে আসে যায়, হ্যাঁ মাসে নিয়ে সাইরা দেয়। তারা কে খায় টাকাটা? বাবুল দাসই। বাবুল দাস কে? OC। কোন থানার? আরকিপুর থানার। কবে নাগাদ এমন? আজকে প্রায় 27 বছর। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।